Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for tuning in. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। We have been talking about Moses, the hero of God. हम परमेश्वर के नायक मूसा के बारे में बात करते आ रहे हैं And we left you in the last time where Moses has gone from the Egyptian school to the wilderness school. और पिछली बार हमने आपको वहां छोड़ा था जहां मूसा मिस्री स्कूल से निकलकर मरुस्थल के स्कूल में पहुंच जाता है। And we know the condition of Moses in the wilderness school. और उस मरुस्थल स्कूल में हम मूसा की दशा को जानते हैं। And the way we know his condition is from Exodus chapter 18 verses 3 and 4. और उसकी जिस प्रकार की दशा के बारे में हम जानते हैं वो निर्गमन 18 अध्याय के 3 और 4 पद में सामने आती है। We know his condition from the naming of his children. हम उसकी दशा को उसके बच्चों के नामकरण करने के द्वारा देखते हैं। Moses was depressed when his first son was born. मूसा के पहले पुत्र के जन्म के समय वो उदास था, So he named him Gershom, तो उसने उसका नाम गेरशोम रखा, which means alien and stranger in a foreign land. जिसका अर्थ है अन्य देश में परदेशी और अजनबी। But then he was in a happy mood when the second son was born. परंतु फिर अपने दूसरे पुत्र के जन्म के समय वो खुश था, So he named him Eleazar, which means God delivered me from the sword of Pharaoh. तो उसका नाम उसने एलिएजर रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। For Moses, the wilderness university was very different from the University of Heliopolis. मूसा के लिए मरुस्थल का ये विश्वविद्यालय हिलोपलस के विश्वविद्यालय से बहुत भिन्न था। The curriculum of learning at the University of the Wilderness was taking care of sheep. मरुस्थल के विश्वविद्यालय में शिक्षा का पाठ्यक्रम था भेड़ों की देखभाल। It was very different from architecture, geometry and mathematics. ये पाठ्यक्रम वास्तुविद्या, गणित और रेखा गणित से बहुत भिन्न था। His teacher in the wilderness was the Lord himself. मरुस्थल में उसका शिक्षक स्वयं प्रभु था। Here in the wilderness, there were no sun worshippers. यहाँ मरुस्थल में सूर्य की उपासना करने वाले लोग नहीं थे, Only the one who made the sun. केवल वो था जिसने सूर्य को बनाया है। Here in the wilderness, no worshippers of nature. यहाँ मरुस्थल में प्रकृति की उपासना करने वाले लोग नहीं थे, But he could commune with the very one who made nature. परंतु यहाँ वो उसके साथ था जिसने प्रकृति की रचना की। And just as his emotions began to heal, और जैसे ही उसकी भावनाएं चंगाई पाने लगी, and just as Moses was beginning to get over the past pain, और जैसे ही मूसा ने अतीत की पीड़ा को भुलाना शुरू ही किया था, something happened that caused all of these past painful emotions to surface again. तो कुछ ऐसा हुआ जिससे अतीत की ये सब पीड़ादायक भावनाएं फिर से बाहर आ गईं। God showed up in person in the burning bush. परमेश्वर एक जलती हुई झाड़ी में एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, And he said to Moses, you are going back to deliver my people. और उसने मूसा से कहा, तू वापस जाकर मेरे लोगों को छुड़ाएगा। Suddenly, all of the forgotten fears gripped Moses' heart once more. अचानक सारे भूले हुए भय ने एक बार फिर से मूसा के हृदय को जकड़ लिया। It was not surprising, therefore, that Moses instantly gave God 4 excuses as to why he should not go back. और इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मूसा ने वापस ना जाने के बारे में तुरंत 4 बहाने परमेश्वर के सामने रख दिए। Let's look at these excuses. आइए इन बहानों पर गौर करते हैं। First, पहला, Moses said, who am I? मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ? Think about the answer to that question with me, please. कृपया मेरे साथ इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचिए। You are Moses. तुम मूसा हो, You were the heir to the throne of the most powerful nation in the world. तुम संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। You are powerful physically and intellectually. तुम शरीर और बुद्धि में सामर्थी हो। You were the general who led victories for Egypt. तुम वो सेनापति थे जिसने मिस्र के लिए कई युद्ध जीते। But Moses would say, all that had been stripped of me. परंतु मूसा ने कहा, वो सब अब मुझसे अलग हो गया है। Now I feel worthless. अब मैं निकम्मा हूँ। Now I feel incapable. अब मैं अपने आप को अयोग्य समझता हूँ। Now I feel inadequate. अब मैं अपने आप को बिल्कुल अपर्याप्त समझता हूँ। 4 decades ago, oh yeah, that would have been true. हाँ, 4 दशक पहले शायद ये बात ठीक होती। Is Moses pretending to be humble here? क्या यहाँ मूसा खुद को नम्र दिखा रहा है? Not at all. बिल्कुल नहीं।
he is actually feeling worthless at this point of his life. असल में जीवन के इस समय में वो बिल्कुल निकम्मा महसूस कर रहा है। He still feels deep rejection in his heart. वो अभी भी अपने हृदय में खुद को अस्वीकृत महसूस कर रहा है। Oh, but this is good news. हाँ, लेकिन ये अच्छी खबर है। You say, how can feeling worthless be good news? आप कहेंगे निकम्मा महसूस करना कैसे ये अच्छी खबर हो सकती है? It means that God can now use you in a far more powerful way than you have ever thought possible. इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आपको उससे कहीं बढ़कर सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर सकता है जितना आपने सोचा था। My listening friends, God specializes in those who feel inadequate. मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर उन लोगों का विशेषज्ञ है जो अपर्याप्त अनुभव करते हैं। God specializes in those who feel empty. परमेश्वर उनका विशेषज्ञ है जो खुद को खुद से खाली अनुभव करते हैं। God said, I will be with you, Moses, and that is enough. परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुम्हारे संग रहूंगा और ये काफी है। In fact, that's everything that you need. बल्कि इसी की तुम्हें जरूरत है। The second excuse was this. दूसरा बहाना ये था, Who shall I tell them sent me? मैं उनसे क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है? Names are very important in many countries. कई देशों में नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। Names represent who you know. नाम दर्शाता है जिसको आप जानते हैं। Names reveal who your family is. नाम प्रकट करते हैं कि आपका परिवार कौन है। Moses once had a big name in Egypt. मिस्र में एक समय मूसा का बड़ा नाम था, In fact, it was one of the biggest. बल्कि ये कई बड़े नामों में से एक था। His name opened doors. उसके नाम से द्वार खुल जाते थे। His name got people to salute. उसके नाम को लोग सलाम करते थे। His name was a powerhouse. उसका नाम ऊर्जा घर था। His name made things happen. उसके नाम से काम हो जाते थे। But one day, his name really meant nothing. परंतु एक दिन उसके नाम का कोई अर्थ नहीं रहा। His own people rejected him. उसके अपने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। His grandfather Pharaoh wanted to kill him. उसका नाना फिरौन उसे मारना चाहता था। And now Moses needed a name bigger than his own. और अब मूसा को अपने नाम से भी बड़े नाम की आवश्यकता थी। Now Moses needed a name more powerful than his own. अब मूसा को अपने से भी शक्तिशाली नाम की जरूरत थी। And God gently and lovingly said to him, Go and tell them that I am who I am sent you. और परमेश्वर ने धीरे से और प्रेम से उससे कहा, जा और उनसे कह, मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है। What was God telling Moses here? परमेश्वर यहाँ मूसा को क्या बता रहा था? He was telling him, I am the eternal God of your forefathers. वो उसे बता रहा था कि मैं तुम्हारे पितरों का अनंत परमेश्वर हूँ। I am the God of the past, the God of the present, and the God of the future. मैं ही अतीत का परमेश्वर हूँ, मैं ही वर्तमान का परमेश्वर हूँ और मैं ही भविष्य का परमेश्वर हूँ। God did not say, my name is I was. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम है मैं था। He would have been only the God of the past. तो वो केवल अतीत का ही परमेश्वर होता। God did not say, my name is I can. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम है मैं कर सकता हूँ। He would have only been the God of the present. इससे वो केवल वर्तमान का ही परमेश्वर होता। God did not say, my name is I will. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा नाम है मैं करूँगा। He would only have been the God of the future. नहीं तो वो केवल भविष्य का ही परमेश्वर होता। No wonder Jesus Christ, who was God in human flesh, declared himself to be I am. कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु मसीह जो कि मानव देह में परमेश्वर था, उसने अपने बारे में यही घोषणा की, मैं हूँ। Jesus said, I am the bread of life. यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। I am the door to life. जीवन का द्वार मैं हूँ। I am the resurrection and the life. जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। I am the way, the truth, and the life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। I am, I am, I am. मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। Without him, no one could ever get into heaven. उसके बिना कभी कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता। And then there is a third excuse. और फिर मूसा का तीसरा बहाना आता है। Moses said, what if they don't believe me? मूसा ने कहा, यदि उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो? Now, this excuse truly reveals Moses' root problem. अब ये बहाना सच में मूसा की असल समस्या को प्रकट करता है। I once thought that I could do this, but I was rejected. मैंने एक बार सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, परंतु मुझे अस्वीकार कर दिया गया। My listening friends, listen carefully to God's response to this excuse. मेरे श्रोता मित्रों, इस बहाने पर परमेश्वर के प्रत्युत्तर पर ध्यान दीजिए। Did God say to Moses, stop wallowing in your emotional pain? क्या परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी भावात्मक पीड़ा में लेटना बंद करो? Is that what God said? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? No. नहीं। In Exodus chapter 4, verses 2 to 9,
निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय के 2 से 9 पदों में God gently and lovingly said to Moses, I am going to give you 3 signs. परमेश्वर ने कोमलता से और प्रेम से मूसा से कहा, मैं तुझे 3 चिन्ह दिखाऊंगा। I'm going to give you 3 supernatural miracles to authenticate my mission for you. मैं तेरे लिए अपने उद्देश्य को प्रमाणित करने के लिए तुझे 3 अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। He said, first you're going to turn the shepherd's staff into a serpent and then back to a staff again. उसने कहा, सबसे पहले तू इस चरवाहे की लाठी को सांप बनाएगा और फिर उसे दोबारा लाठी बनाएगा। Then I'll cause your hands to be struck with leprosy and then whole again. और फिर मैं तेरे हाथ को कोढ़ लगाऊंगा और फिर अच्छा कर दूंगा। And I will turn waters of the Nile River into blood and then back to water again. और फिर मैं नील नदी के सारे पानी को खून में बदल दूंगा और फिर उसे वापस पानी बना दूंगा। Not just 1 sign, but 3. केवल 1 नहीं, 3 चिन्ह। Now Moses keeps his 4th and biggest excuse to the end. अब मूसा अपना चौथा और सबसे बड़ा बहाना अंत में सामने लाता है। Exodus chapter 4 verse 10, Moses said, I am slow of speech and stutter. निर्गमन 4 अध्याय के 10 पद में मूसा कहता है, मैं तो बोलने में धीमा और भद्दा हूँ। How can I get Pharaoh to respect me with the impediment that I have? जैसा मैं बोलने में भद्दा हूँ, उससे कैसे फिरौन मेरी ओर ध्यान देगा? I want to remind you of something very, very important. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूँ। In the last message, I told you that the book of Acts said that Moses was powerful in speech and action. पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि प्रेरितों की पुस्तक कहती है कि मूसा बोलने और कार्य में बहुत प्रभावशाली था। What happened to this powerful speech? इस प्रभावशाली बोली को अब क्या हुआ? When Moses experienced rejection, he lost his eloquence. जब मूसा ने अस्वीकृति का अनुभव किया तो उसने अपनी धारा प्रवाह बोलने की खासियत खो दी। He had been away from civilization for 40 years. वो 40 साल तक सभ्य जगत से अलग रहा था। He has been away from the halls of learning for 40 years. वो 40 साल से शिक्षा भवनों से दूर रह रहा था। He didn't even know how to speak anymore. वो तो अब बोलना तक नहीं जानता था। But also you must remember that with rejection comes a loss of confidence. परंतु आपको ये भी याद रखना आवश्यक है कि अस्वीकार होने से आत्मविश्वास भी चला जाता है। With rejection came the feeling of incompetence. अस्वीकार होने के साथ ही असमर्थता का एहसास भी आ गया था। Some believe that Moses actually developed his stuttering problem because of his emotional pain. कुछ लोगों का विश्वास है कि मूसा को हकलाने की समस्या असल में उसकी भावनात्मक पीड़ा के कारण हुई। But once again you find God sympathetic and understanding. परंतु एक बार फिर आप परमेश्वर को सहमत और सहानुभूतिपूर्ण पाते हैं। God said, Who gave man his mouth? परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को उसका मुंह किसने दिया है? Who makes him deaf or mute? Who gives the eye? कौन उसे गूंगा या बहरा बनाता है? आंख कौन देता है? Is it not the Lord? क्या ये प्रभु ही नहीं है? Now go. अब जा, I will help you speak and I will teach you what to say. मैं बोलने में तेरी सहायता करूंगा और जो तुझे बोलना है मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। But what brought about the Lord's anger is that after all of these gracious responses to Moses' excuses, परंतु प्रभु को गुस्सा इस बात से आया कि मूसा के इन सब बहानों का इतना दयापूर्ण प्रत्युत्तर देने के बाद भी Moses was still reluctant to cooperate with God's will for his life. मूसा अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ सहयोग करने में अरुचि दिखा रहा था। My listening friends, please listen carefully as I conclude. मेरे श्रोता मित्रों, मेरे समाप्त करते हुए कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। God is very compassionate with those who are fearful. परमेश्वर उनके प्रति बहुत तरस रखता है जो डरते हैं। God is very compassionate with those who are anxious. परमेश्वर उनके प्रति बहुत तरस रखता है जो चिंतित हैं। God is very compassionate with those who are in physical or emotional pain. परमेश्वर उनके प्रति बहुत सहानुभूति रखता है जो शारीरिक या भावात्मक पीड़ा में है। But the one thing that is an affront to God परंतु एक बात जो कि परमेश्वर का अपमान है, is a deliberate refusal to obeying Him. वो है जानबूझकर उसकी आज्ञा मानने से इनकार करना। Our God is an awesome God. हमारा परमेश्वर विस्मयकारी परमेश्वर है। Our God keeps His promise even if it takes 400 years. हमारा परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर है, चाहे इसे 400 वर्ष भी लग जाएं। And when God spoke to Moses through the burning bush, and the bush never burnt or was consumed. और जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बात की और झाड़ी न तो जली और न जलकर भस्म हुई,
that was a sign in itself. तो ये अपने आप में एक चिन्ह था। It is a sign that those who are protected by the Lord can never be destroyed. ये वो चिन्ह है कि जिनकी रक्षा प्रभु करता है वो कभी नाश नहीं हो सकते। When Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into Nebuchadnezzar's fiery furnace, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर की जलती हुई भट्टी में फेंका गया, God came down and walked with them as if they were walking in a garden. तो परमेश्वर आया और उस भट्टी में उनके साथ ऐसे चला जैसे वो बाग में सैर कर रहे हों। And not one single hair of their head was singed. और उनके सिर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। When you are walking with the Lord, the fire of trials and difficulties will never consume you. जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो परीक्षाओं और समस्याओं की आग आपको कभी नहीं जला पाएगी। When you are walking with the Lord, the very gates of hell will not overcome you. जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो नरक के द्वार भी आप पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। When you are walking with the Lord, you are eternally secure in Him. जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो आप अनंत काल के लिए उसमें सुरक्षित हैं। For Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, "Those whom the Father has given me, I will lose none." जिन्हें पिता ने मुझे दिया है मैं उनमें से किसी को ना खोऊंगा। When you are walking with the Lord, जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं the Holy Spirit will burn bright in you and through you. तो पवित्र आत्मा आप में और आपके द्वारा चमकता चला जाएगा। My friends, God keeps His word. मेरे मित्र, परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। The question is, are you willing to believe His word and obey it? प्रश्न ये है कि क्या आप उसके वचन पर विश्वास करने और इसे मानने के लिए तैयार हैं? My prayer is that you would say yes. मेरी प्रार्थना है कि आप कहें हाँ। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।